विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षा जयपुर एवं रसायन शास्त्र विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस प्रायोगिक सत्र में मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा सह आचार्य आपसे लैब सेटअप के बारे में कुछ जानकारियां साझा करूंगा एवं मेरे साथी मित्र डॉक्टर मनोज बत्रा आपसे लैब सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारियां साझा करेंगे। नाउ व्हाट इज लैब? अ लेबोरेटरी इज अ रूम equipped with scientific equipments to perform scientific experiments and research. If you want to establish a chemistry lab in your college, the first and the foremost thing is you have to decide about the location. The chemistry lab should be well isolated from all theory classrooms of your college. Now, a minimum area of 1400 square feet is required to establish a chemistry lab with a small storeroom and instrumentation room. The standard size of the lab should be 30.7 by 28 square feet. It should have separate entry and exit point. There should be proper ventilation. For proper ventilation, minimum 4 windows of size 4 by 4 square feet is required. Minimum 2 exhaust fans are to be placed in a chemistry laboratory. There should be proper drainage system. If we talk about the infrastructure and organization of the lab, one demonstration table should be there. A demonstration table is a table on which the teacher demonstrates the experiments to the students. Now, one minimum 3 student working table should be there, and the size of the student working table should be 4 feet in width, 8 feet in length and 3 feet in height. And the capacity of each student working table should be of 8 students, so that minimum 24 students can work at a time. Each student working table should have these reagent shelves, and these reagent shelves should contain the chemicals which are frequently used by the students, just like HCl, HNO3, NH4OH, calcium hydroxide, barium hydroxides. And these reagent bottles should be well corked, well labeled, and its list should be displayed in the laboratory. Minimum 2 sinks with 2 taps should be there for water supply, and underground gas pipe fitting should be there, and minimum 4 burners are to be fitted on student working table. In chemistry, there are certain experiments in which hazardous fumes are being eliminated. So, at corner of the laboratory, there should be one fuming cupboard. Fuming cupboard is a cupboard in which the practicals are being performed, in which hazardous and poisonous fumes are being eliminated. This is a fuming cupboard. Near to the chemistry laboratory, one small room of size 10 by 10 square feet should be there, which is known as balance or instrument room, in which balance and pH meters and certain instruments are to be placed. In this room, instruction for the handling of the instruments should be there, displayed in the room. As far as for records we are concerned, 2 stock registers should be maintained, one for consumable item and another for non-consumable item. And in consumable item, the issued and consumed product should be recorded properly. Now,
with the side of laboratory there should be one separate storeroom. In that room, flammable and non-flammable solids and liquids chemicals are to be stored separately. In each lab there should be one indent book. Indent book is a book in which the professor lab in charge give the requisition about the chemical to be issued from the storeroom. Now, term-wise plan to conduct the experiments during the whole year should also be displayed in the laboratory. This is a term-wise plan which is to be displayed in the laboratory. This is all about chemistry laboratory setup. Now invite my friend Dr. Batra to speak about lab safety. Thank you. सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सहाचार्य रसायन शास्त्र विभाग। अब मैं आपको लैब सेफ्टी के संबंध में बताऊंगा। लैब सेफ्टी जो है वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण या जिसको अपन कहते हैं इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लैब सेफ्टी को हमारे केमिस्ट्री लैब में इंश्योर करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात है अवेयरनेस और दूसरा है ट्रेनिंग, और दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रूप से होनी चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट अवेयरनेस और दूसरा है कांस्टेंट ट्रेनिंग। इन दोनों की सहायता से जो है हम लैब सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। देखिए, लैब सेफ्टी जो है उसके दो कंपोनेंट और भी हैं, जो है एक है मेंटर और दूसरा है स्टूडेंट। तो ये जो अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो है इसकी आवश्यकता दोनों के लिए है, मेंटर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर चाहते हैं कि वो डाउन द लाइन जाए तो हमें उसको डेमोस्ट्रेट करके बताना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे मेंटर का रोल है या टीचर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्टूडेंट को डेमोस्ट्रेट करके बताना पड़ेगा कि किस तरह से जो है हम लैब सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। वो हम कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे कार्य हैं वो हमारे शब्दों से अधिक बोलते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को जो है हमें डेमोस्ट्रेट करके बताना पड़ता है कि किस तरह से जो है वो लैब सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाए। जब स्टूडेंट हमारी क्लास में आता है तो स्टूडेंट को हमें सिस्टम ऑफ डूज एंड डोंट्स जो है वो बताने की आवश्यकता होती है कि क्या उसको करना है और क्या उसको नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहली बात है, जैसे ही स्टूडेंट हमारी क्लास में आता है तो हमें उसे कहना है कि वो अपने साथ में केवल अपनी एक नोटबुक लेकर आए और एक पेन लेकर आए, बाकी सारा सामान जो है वो लैब के बाहर छोड़ कर आए। उसके बाद में जब भी वो लैब में स्टूडेंट आता है तो हमें उसे कहना है कि जो भी उसकी लूज क्लोथिंग है, जैसे मान लीजिए चुन्नी है या कोई स्कार्फ है या बाल जैसे खुले हुए हैं, तो उसको जो है वो उसको जो है टाई कर आएँ, बांध कर आएँ। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें बोलना है कि जो केमिस्ट्री की लैब में आप आएंगे तो कोई भी जोक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं हो कि कोई हम अननोन केमिकल्स को आपस में मिला रहे हैं, कोई लैब प्रैंक्स जिसको हम कहते हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा लैब के अंदर कोई भी खाना या पीना की जो वस्तु है वो नहीं होनी चाहिए, उसको हमें खाना या पीना नहीं है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है वो। इसके बाद लैब में जब भी हम स्टूडेंट जो खाली समय में होता है तो उनको एक बात बोलनी है कि अपनी जो इंक्विजिटिवनेस है उसको उनको कंट्रोल करके रखना है। उन्हें चीज़ों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्टूडेंट अक्सर एक काम भी करते हैं कि वो कुछ चीज़ों को चखने की कोशिश करें, तो हमें उन्हें कहना है कि केमिस्ट्री लैब में कोई भी चीज़ चखनी या सूंघनी नहीं है। ये सब बातें जो है वो उनको हमको प्रथम दिन से ही बतानी होगी। इसी के तरह से जब वो कोई एक कॉन्सेंट्रेट एसिड को किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करें तो उन्हें भी ये कहने की आवश्यकता है कि उस टाइम में भी उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, उसके समय में उसको बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
प्रैक्टिकल करने के लिए जब भी स्टूडेंट लैब में आए तो वो अपने साथ में ये एप्रन, जिसको हम लैब कोट कहते हैं, वो इसके बाद में ये गॉगल्स और ग्लव्स जो है वो अवश्य रूप से पहनकर आए। और ये सब जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो, ऐसा नहीं हो कि हम केवल पहन लें लेकिन ये कोई प्रोटेक्शन ना करें। तो इसका विशेष रूप से बच्चों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सामान्य जानकारियों में हम सबको, विद्यार्थियों को भी कुछ सामान्य जानकारी देने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से जो बॉटल्स होती हैं जो केमिकल्स की, उनके ऊपर जो है विशेष प्रकार के हैज़ार्ड सिंबल्स लगे हुए होते हैं। तो इन हैज़ार्ड सिंबल्स को के संबंध में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि ये हैज़ार्ड सिंबल्स जो हैं वो कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, कौन से केमिकल ऐसे हैं जो एक्सप्लोजिव हैं, कौन से केमिकल ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो कोरोसिव नेचर के हैं। तो ये जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनके ऊपर जो हैज़ार्ड्स सिंबल्स होते हैं वो उस केमिकल के बारे में सूचना देते हैं और उससे हमें ये भी पता लगता है कि किस प्रकार से उन केमिकल्स को हमें स्टोर करना है, कैसे उसका डिस्पोजल करना है, और अगर उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो किस प्रकार से उसकी फ़र्स्ट एड जो है वो किया जाए। इसी प्रकार से लैब के अंदर ही जो लैब सेफ्टी रूल्स हैं उसके बारे में भी हमें जो डिफरेंट पोस्टर्स हैं उनके माध्यम से स्टूडेंट को जनरल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि किस प्रकार से जो है लैब में हमें कंडक्ट करना है और लैब में किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसी तरह से जो लैब में अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर क्या फ़र्स्ट एड जो है वो काम में लेनी चाहिए। तो जो कुछ सामान्य बेसिक फ़र्स्ट एड के बारे में जो सूचना है वो भी हम जो है पोस्टर के माध्यम से स्टूडेंट को डिस्प्ले करें। तो ये सब बातें जो हैं ये सब हमें जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत विद्यार्थियों को बतानी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट को जो है वो एक सामान्य जो लैब के अंदर आग की एक जो समस्या आती है उसके संबंध में हमको बच्चों को जानकारी देने की आवश्यकता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आग इसलिए पकड़ती है क्योंकि उसमें एक इग्निशन है, एक फ्यूल है और एक ऑक्सीजन है। तो हमारे केमिस्ट्री लैब के अंदर अक्सर जो है वो आग लगने की समस्या होती है, तो उसके बारे में भी बच्चों को सामान्य जानकारी देने की आवश्यकता है कि आग लगने की स्थिति में जो है वो पैनिक नहीं करें, वो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमें आग को बुझाने के लिए मुख्य रूप से जो है क्या क्या चीज़ें काम में लेनी चाहिए। छोटी आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, मिट्टी हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद में जो फायर ब्लैंकेट्स आती हैं, अगर आग ज़्यादा है तो उसको उड़ाकर जो है नीचे ज़मीन पर लेटा दिया जाए और उसको रोल कर दिया जाए जिससे कि वो फायर जो है वो कपड़ों में अगर लगी है तो बुझ जाए। और इसके बाद में ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर हमारे केमिस्ट्री की हर लैब में होता है लेकिन बच्चे इसको ऑपरेट करना नहीं जानते, तो इसके लिए भी हमें उनको बताना चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। देखिए ये एक पास एक वर्ड है उसके सिद्धांत पर वर्क करता है, PASS। तो P का मतलब है पुल। तो सबसे पहले जो ये पिन है इसको हमें यहाँ पर खींचना होता है। इस पुल करने के बाद में ये जो इसका नोजल है इसको हमें एम करना होता है, जिस तरफ आग लगी है उसकी तरफ इसको एम करेंगे। तीसरा जो है इसको हमको स्क्वीज करना होता है और स्क्वीज करके हम यहाँ से इसको ऊपर नीचे बार बार 2 बार दबाएंगे इसको बार बार, तो इसमें से जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और चौथा जो है वो होता है स्वीप, यानी जो एरिया है जहाँ पर आग लगी है उस पर हमें इसको बुझाने के लिए इसको अपने स्थान पर हिलाना पड़ेगा, इसको स्वीप करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पास वर्ड जो है, बज़वर्ड जो है, इसके ऊपर जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो काम करता है। तो ये सामान्य जानकारी हमें देनी है। इसके बाद में एक MSDS एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका देखिए यहाँ पर अपन ने डिस्प्ले किया हुआ है कि एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है जो ये बताती है कि कोई भी मटेरियल जो है वो 4 स्केल पर कितना हैजार्डियस है। 4 स्केल कौन कौन से हैं? एक है रिएक्टिविटी का लेवल, एक है फायर हैजार्ड, एक है हेल्थ हैजार्ड और चौथा है स्पेसिफिक हैजार्ड। इन चारों के ऊपर जो है उसकी ग्रेडिंग होती है और ये बताता है कि कोई भी केमिकल है वो कितना हैजार्डियस है और उसका जो प्रोटोकॉल है उसको डिस्पोज करने का और उसके साथ में जो फर्स्ट एड है वो क्या होगी। तो ये सब जो है ये MSDS जो है इसके अंदर होता है। तो ये जो सामान्य जानकारी है ये लैब में आने वाले हर बच्चे को जो है वो हमें देनी है। अब हम बात करते हैं कि लैब में जो हमारे जो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो बच्चे काम करते हैं उस पर कौन कौन से संभावित जो है वो एक्सीडेंट जो है होते हैं और उसके संबंध में क्या किया जाना चाहिए।
तो देखिए एक सामान्य बात है कि जैसे स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं जब भी कोई केमिकल को गर्म करते हैं तो केमिकल को गर्म करते समय जो है वो उसको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में गर्म करना चाहिए, उसको नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में गर्म नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य बात है जो हमें बच्चों को बताने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक जिसको अपन कहते हैं कि लिक्विड्स हैं जो बहुत इन्फ्लेमेबल हैं, लेकिन उनको कभी कभी अगर स्टूडेंट डायरेक्ट हीट करते हैं तो वो एकदम से वो आग पकड़ लेते हैं। तो हमें उन्हें बताना है कि उन्हें कभी भी डायरेक्ट हीट नहीं करना। जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है, उनको बेंजीन है, उनको आप हमेशा वाटर बाथ पे करेंगे, कभी भी उनको डायरेक्ट जो है वो हीट नहीं करेंगे। इसी तरह से एक एलिमेंटल एनालिसिस में सामान्य रूप से प्रॉब्लम होती है जब हम इस जो है इस इग्निशन ट्यूब के अंदर जो है सोडियम पीस डालते हैं और उसको डालने के बाद में फिर हम उसको हीट करते हैं और उसकी जो हीटिंग है वो अगर एकदम से ज़्यादा कर दी जाए, इंटरमीडिएट हीटिंग की जगह पर फास्ट हीटिंग कर दी जाए, तो जो सोडियम का पीस है वो एकदम से मिसाइल की तरह बाहर निकलता है और किसी पे गिरता है। तो उसको लिए हमको बच्चों को कहना है कि आप कभी भी हीटिंग करें तो बड़ी स्लो हीटिंग, इंटरमीडिएट हीटिंग जो है वो सोडियम के केस में होनी चाहिए। इसी तरह से डाइल्यूशन एक्सरसाइज में बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं कि H2SO4 को मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन की एक्सरसाइज में हमें ये बोलना है कि जो डाइल्यूशन है वो वाटर का एक तरह से डाइल्यूशन है, एसिड का डाइल्यूशन नहीं है। हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना होता है, ना कि एसिड के अंदर वाटर डालें, क्योंकि जैसे ही एसिड के अंदर वाटर डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, वो एकदम से स्प्लैश करेगा और दुर्घटना होगी। तो ये बातें जो है ध्यान रखने की। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जो एक बीकर से दूसरे बीकर में जब हम चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र करते समय जो है वो हाथों पर या कपड़ों पर वो चीज़ें जो है वो गिर जाती हैं, तो उसके लिए जो है सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब एक्सीडेंट्स के बारे में हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देनी चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट के ऊपर एसिड गिर जाता है तो उसके लिए वो क्या करे। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि एसिड अगर गिर जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें हम रखते हैं, उसको यूज़ करते हुए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको डाल देंगे, तो वो स्टूडेंट का जो बर्निंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर ज़्यादा बर्निंग है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर बेस के साथ में बर्निंग है तो उसके लिए भी हम 5% एसिटिक एसिड जो है वो काम में लेते हैं। सामान्य रूप से अगर बर्निंग होती है तो उसको हम पानी के टैप वाटर जो है उस पर काफ़ी सारी उसमें मात्रा में डालते हैं और फिर जो है उसके ऊपर कोई बर्नॉल या कोई टूथपेस्ट वगैरह जो है वो हम यूज़ करके लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा बच्चे के हाथ में घुस जाता है तो उस समय में भी ये होता है कि उस कांच के टुकड़े को बाहर निकाल दें और उसके ऊपर जो भी बैंडेज वगैरह है गॉज लगा के बाद में उसको फर्स्ट एंटीसेप्टिक लगाकर उस पर हम बैंडेज कर दें। इसी तरह से जो है जो छोटे छोटे उपचार है, जैसे मान लीजिए आंख में अगर कोई केमिकल गिर जाए तो बहुत सारा पानी के साथ में उसको लगातार हम 15 मिनट तक आंख को धोएं। और कोई केमिकल मान लीजिए बच्चा पिपेट आउट करते समय उसको अंदर ले ले तो उसके लिए ये है कि उसको बहुत अधिक मात्रा में पानी पिलाया जाए, या अगर पॉसिबल हो तो हम उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करवा पाएँ किसी तरीके से, ये बहुत आवश्यक है। तो पिपेट आउट करते समय भी हमें बच्चों को ये बोलना है कि हमें एसिड्स को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को जो है पिपेट आउट नहीं करना है, जिसके लिए पिपेट बल्ब का यूज़ करना है। तो ये कुछ सामान्य सावधानियां हैं जिसकी सहायता से जो स्टूडेंट है उसको हम बता सकते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो किस प्रकार से एस्टेब्लिश करे। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे राजस्थानी में एक कहावत होती है कि जब किसी को प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। तो इसीलिए हम कोई इंतजार ना करें कि कोई हमारी लैब में कोई एक्सीडेंट हो और उसके बाद में हम जो है लैब सेफ्टी की बात करें। हमें फर्स्ट डेट से ही जो है लैब सेफ्टी जो है इसको इंश्योर करना पड़ेगा और इसकी आदत बनानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।